السلام علیکم دوستو، تو میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں بہت اچھا پیغام۔ بقرہ عید کے بارے میں مولانا بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو، اس تقریر کو سنیے گا اور کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ کے بھیجیے گا، اور پوری سنیے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں امام صاحب، اور بقرہ عید کے حوالے سے یہ تقریر کر رہے ہیں۔ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور سبسکرائبر کرو۔ آگے سے ایک اچھا پیغام آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ سلام کی عمر شریف جب 13 سال کے قریب ہو جاتی ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 15 کے قریب ہو جاتی ہے حضرات گرامی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ ابراہیم اٹھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ آپ صبح کو بیدار ہوتے ہیں، آپ نے 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کر دیے۔ دوسری رات سوئے تو پھر یہی خواب آتا ہے، پھر آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر آپ کو یہی خواب آتا ہے۔ آپ نے عرض کیا کس چیز کو قربان کروں؟ کہا اس چیز کو قربان کرو جو تمہیں پیاری ہے، جو تمہیں عزیز ہے۔ آپ سمجھ گئے میرے بیٹے کی قربانی مجھ سے مانگی جا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں میں اور میرا بیٹا ایک دعوت پہ جانا چاہ رہے ہیں، میرے بیٹے کو تیار کر دیا جائے۔ حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلتے ہیں، ہاتھ میں رسی لی اور آستین کے اندر چھری رکھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے اور جب مقام منی میں پہنچے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، پورا واقعہ قرآن کے اندر ہے، لیکن اس کو بتانے سے پہلے آپ یہ سنیے کہ ابلیس لعین کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے لال کو کہاں لے گئے ہیں؟ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہا وہ ایک دعوت پر گئے ہیں۔ کہا سنو وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ کہا ہاں انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا اللہ نے حکم دیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ میرا بیٹا ابراہیم اور میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں یہ اسی کی امانت ہے، وہ جیسے چاہے ویسے واپس لے لے، میں کون ہوتی ہوں بیچ میں رکاوٹ بننے والی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا میرے لال تیری کیا مرضی ہے؟ حضرات جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پورا واقعہ قرآن میں آیا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کہا باپ بھی راضی ہے بیٹا بھی راضی ہے، شیطان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شیطان نے راستے میں بہکانا چاہا تھا، شیطان نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں، وہاں پر داؤ نہیں چلا۔ اسماعیل علیہ السلام سے کہا راستے میں کہ تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوں تب بھی اس رب کی راہ میں قربان ہوتا ہوا چلا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم تم نے ایک خواب کو سچا سمجھ لیا ہے، خواب جھوٹے بھی تو ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، 7 کنکریاں اٹھا کر کے اور ابلیس کے ماری اور فرمایا کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، مردود دور ہو جا۔ شیطان کے کنکری ماری، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائیں تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ شیطان کو کنکری نہیں مار لیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، جب مقام منی میں پہنچے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ
मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे वालिद आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, मेरे वालिद आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी दो तीन बातें हैं, आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया क्या है बेटा? कहा मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा, और कहा तीसरी बात मेरी यह है कि मेरा खून में आलूद कुर्ता मेरी अम्मी को दे देना ताकि वो इसको देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। जब भी उनको उनके बेटे की याद आएगी तो वो इस कुर्ते को देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मुझे मंजूर है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाना चाहिए। रब के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार आज इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान कर दिया, मौला ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ऐ मेरे परवरदिगार ऐसा मंजर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा है। ऐ मेरे परवरदिगार आज एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि तेरा इब्राहीम अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरा इब्राहीम अब औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, तेरा इब्राहीम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ मेरे फरिश्तों देख लो, मेरा इब्राहीम ना अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहीम मोहब्बत करता है तो अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता है। इब्राहीम मोहब्बत करता है तो अपने खालिक हकीकी से मोहब्बत करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला रहे हैं, छुरी कुंद हो जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छुरी को तेज किया, फिर बेटे के हल्क पे रखा, फिर छुरी कुंद हो जाती है। आपको जलाल आता है, छुरी को पत्थर पर मारते हैं, छुरी पत्थर के दो टुकड़े कर देती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा है, छुरी इस्माईल का गला तो रेशम से भी ज्यादा नरमो नाजुक है, तूने इस्माईल के गले को नहीं काटा और पत्थर जैसी सख्त चीज के तूने दो टुकड़े कर दिए। तो छुरी जुबाने हाल से कहती है, अल खलीलो यामुरनी वल जलीलो ला यनहानी। इब्राहीम तुम मुझसे कहते हो कि काट, और जलील हुक्म देता है खबरदार अगर तूने इस्माईल के एक बाल भी बेका किया, मैं किसके हुक्म को मानूं? इब्राहीम जिस रब के हुक्म से तुम यहाँ कुर्बानी करने के लिए आए हो उसी रब का मुझे हुक्म है। तुम एक मर्तबा मुझसे कहते हो छुरी के काट, और वो रब मुझसे 70 मर्तबा फरमाता है खबरदार अगर इस्माईल के हल्क को काटा। अब बताओ मैं उस रब के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ छुरी मैं राजी हूँ, मेरा बेटा राजी है, फिर तू बीच में रुकावट क्यों बनती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान करने का। छुरी उठा करके ले जा रहे थे हल्क की तरफ। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल जो दुम्बा जन्नत में चल रहा है 40 साल से या 80 साल से, उस दुम्बे को ले जा करके इस्माईल की जगह पे रख दो और इस्माईल को बचाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत जाते हैं और जन्नत से दुम्बा लेकर के मकाम मिना में पहुंचते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम को उठा करके खड़ा कर देते हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं, दुम्बे को उनकी जगह पर रख दिया जाता है, दुम्बा कुर्बान हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटा अलग मुस्कुरा रहा है और उनकी जगह पे दुम्बा कुर्बान हो जाता है। गैब से आवाज आती है, व नादैनहु अन्या इब्राहीम कद सदक़्ता रुइया व इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और हम ihसान करने वालों को ऐसा ही बदला अता फरमाते हैं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए मकाम मिना में पहुंच गए। बेटे को रब ने बचा लिया और उनकी जगह पे फिदिये में दुम्बा दे दिया और दुम्बा कुर्बान हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिक़लाल देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तेहकाम देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बाकी रखा है कि जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करे, क्योंकि कुर्बानी का जो दिन आता है 10वें ज़िलहिज्जा आती है, उस दिन परवरदिगारे आलम को खून बहाने से बेहतर इब्ने आदम का कोई अमल पसंद नहीं है। इब्ने आदम का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो है वो खून बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन मालिक निसाब कहते किसको है? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। किसी जिसके पास 35,000 या 40,000 रुपए हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, इसलिए वो कुर्बानी का इहतिमाम करना चाहिए, उस दिन कुर्बानी करना चाहिए। परवरदिगारे आलम को 10वीं ज़िलहिज्जा इब्ने आदम का सबसे ज्यादा मकबूल अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई अमल है तो वो कुर्बानी करना है। तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के की सरजमीन पर कुर्बानी के बाद वहीं पर छोड़ देते हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं और आपकी कबीला बनी जुरहुम में शादी कर दी जाती है। एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, आप शिकार के लिए गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस्माईल कहाँ हैं? तो उनकी बीवी ने कहा कि वो शिकार के लिए गए हैं। पूछा कि जिंदगी कैसे कट रही है? तो कहा कि जिंदगी बड़ी परेशानियों में कट रही है। वो शिकार को चले जाते हैं, घर में बच्चे पर हम लोग परेशान रहते हैं। हजरात गिरामी, जब ये कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इस्माईल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो अपने घर की चौखट बदल दें। ये कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मुल्क शाम तशरीफ ले गए। दूसरी, जब इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो आपने फरमाया मुझे मेरे वालिद की खुशबू आ रही है। पूछा तो कहा कि हाँ, एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने आपके बारे में पूछा था और घर के हालात के बारे में भी पूछा था। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने क्या कहा? कहा उन्होंने कहा था कि इस्माईल से कह देना कि वो अपने घर की चौखट बदल दे। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं क्योंकि तू नाशुक्री है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे तलाक दे दी। दूसरा निकाह किया इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाए। आपने पूछा कहाँ हैं? तो बताया कि वो शिकार के लिए गए हुए हैं। पूछा कैसे कट रही है? कहा अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से कट रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माईल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो इस चौखट को बरकरार रखें। अल्लाह अकबर। ये हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपको हुक्म होता है कि आप खाना काबा की तामीर करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेते हैं और खाना काबा की तामीर करते हैं। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि जाओ और मेरे इब्राहीम की मदद करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते जाते थे। अब यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। खाना काबा की तामीर जो हुई है वो कई मर्तबा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले काबे की तामीर हुई थी और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबे की तामीर की है और आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 9 मरतबा या 11 मरतबा खाना काबा की तामीर हुई है। हजरात गिरामी, अब जरा अपने जहन को करीब करो, खाना काबा की तामीर कैसे हुई है? हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे को कैसे तामीर किया है? जब तूफान नूह आया तो काबा शहीद हो गया। जमीन पर सिवाय बुनियादों के और कोई निशान नहीं था। हजरे अस्वद को फरिश्तों ने उठा करके
अबू कुबैस पहाड़ी के अंदर छिपा दिया था। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर करनी चाही तो रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार मैं काबे की तामीर कहां से करूं? हजरात गिरामी, तो गैब से एक बादल आता है और आकर के जहां काबे की हुदूद थी वहां पर साया फिगन हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यहां काबा तामीर करना है। परवरदिगार आलम ने उस बादल को ये इनाम अता फरमाया कि बादल को हुक्म दिया कि ऐ बादल, जैसे तू काबे के साए में साया फिगन हो गया है, ऐसे ही तुझे ये इनाम मिलता है कि जब मेरा महबूब मक्के की सरजमीन पर आए तो जहां जहां मेरा महबूब जाए तो उसके ऊपर साया फिगन होता हुआ जाना, तू उसके ऊपर साया करते हुए जाना। वो बादल का टुकड़ा मदीने वाले मुस्तफा पे साया करता हुआ चलता था हजरात। और एक रिवायत में आता है कि काबे की तामीर के लिए परवरदिगार आलम जो जगह थी उस जगह को बताने के लिए परवरदिगार आलम ने एक मकड़ी को पैदा फरमाया और वो मकड़ी जहां जहां जाती थी वहां पर रोशनी होती थी। काबे की बुनियादें उसके जरिए पता चल गईं और मकड़ी को अल्लाह ताला ने ये इनाम अता फरमाया, ये इनाम अता फरमाया, हुक्म दिया कि जब मेरा महबूब मक्के से हिजरत करके मदीने को तशरीफ ले जाए और जब वो गारे सौर के अंदर बैठे तो मकड़ी को हुक्म दिया था कि तुझे ये इनाम दिया जाता है कि तू मेरे महबूब के लिए गार के दरवाजे पे जाला तान देना, जाला बुन देना। हजरात गिरामी, एक रिवायत में है कि एक बिजली, चमकदार कड़कदार बिजली आई और आकर के उस जगह पर गिरी जहां पर खाना काबा की तामीर है और उस जगह को चमकदार बना दिया जहां जहां काबे की बुनियादें थी। हजरात गिरामी, अल मुख्तसर ये कि काबे की तामीर हो रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा लेकर के आते, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर के आते। काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में हैं। कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे तूर सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। ये 5 पहाड़ों ही के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ दुनिया में हैं, लेकिन इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस बंदों से निस्बत है, अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है, इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। जैसे कि कोहे हिरा को निस्बत हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, जो लंका में पहाड़ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ के ऊपर तशरीफ लाए थे। और कोहे सीना को भी निस्बत, कोहे सीना को भी निस्बत है, कोहे जूदी को भी निस्बत पैगंबर से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग जो मिली थी वो तूर सीना पे जाकर के मिली थी। तूर के कोहे तूर जो है उस हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसको निस्बत है। इसलिए इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है। इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगाए गए। कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थरों को काबे की तामीर में क्यों लगाया गया? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, खाना काबा की तामीर होने के बाद में परवरदिगार आलम ने इस उम्मत के ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, परवरदिगार आलम ने 5 वक्त की नमाज तो मुसलमानों के ऊपर फर्ज की है। जो भी मुसलमान खुशू और हुजू के साथ में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, परवरदिगार आलम उसको 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। इस्लाम के अरकान भी 5 हैं, नमाजें भी 5 हैं, काबे की तामीर में पत्थर भी 5 लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं। अल्लाह अकबर। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। हजरात, उसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं, काबे के तवाफ से जब फारिग होते हैं तो मकाम इब्राहिम के पास में आकर के 2 रकत नमाज पढ़ते हैं।
یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اب جب کعبہ تعمیر ہو گیا، جب کعبہ بن گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے پروردگار یہ تحفہ ہماری جانب سے قبول فرما اور اپنے اس پیغمبر کو ہماری نسل میں عطا فرما دے۔ دعا کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار اس دعا کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اب اس گھر کے طواف کے لیے آئیں، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اب کعبے کے طواف کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اس کو پوری دنیا میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پتھر بلند ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مثل بلند ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے لوگو اللہ کا حکم ہے حج کرنے کے لیے آؤ، اے لوگو اللہ کا حکم ہے کعبے کے طواف کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز دی حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا اور پوری دنیا کے لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ جو ماں کے شکم میں تھے وہ ماں کے شکم سے آواز دے رہے تھے لبیک اللہم لبیک، جو باپ کی صلب میں تھے وہ باپ کی صلبوں سے آواز دے رہے تھے لبیک اللہم لبیک۔ حضرات گرامی آج کا بدعقیدہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم یہاں سے ہندوستان سے کھڑے ہو کر کے نبی پہ سلام پڑھتے ہو، کیا تمہارے نبی سلام سنتے ہیں؟ حضرات گرامی آج تو سمجھانے کے لیے بہت سارے آلات موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، کہیں پر لائیو پروگرام چلتا ہے تو چلتا وہ پروگرام بریلی میں ہے اور اسے سنا پوری دنیا میں جاتا ہے، وہ پروگرام چلتا تو پیلی بھیت میں ہے لیکن اس پروگرام کو پوری دنیا میں لائیو دیکھا جاتا ہے۔ کیسے یہاں پیلی بھیت کی آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے؟ آج ان آلات کے اوپر تو انسان کا عقیدہ ہے وہ پروردگار عالم جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے ان آلات کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو یہ دماغ عطا فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں ایجاد کر دے، اس رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں، آپ کی آواز کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے غلام ہندوستان سے کھڑے ہو کر کے مدینے والے مصطفیٰ پہ سلام پڑھیں تو پروردگار عالم ہمارے سلام کو فرشتوں کے ذریعے مدینے میں کیوں نہیں پہنچا دے گا؟ یقیناً ہمارے سلام کو مدینہ منورہ پہنچایا جاتا ہے۔ تبھی تو میرا امام پکار کے کہتا ہے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر رسمی طور پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں، اور جب میرا عاشق، جب میرا دیوانہ، جب مجھ سے سچی محبت کرنے والا سچے دل سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، میں اس کے درود کو خود اپنے مقدس کانوں سے سنتا ہوں۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں میرا رب پہنچا سکتا ہے، وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب مالک علی الاطلاق ہے، وہ رب احکم الحاکمین ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ جو لوگ ماں کے شکم میں تھے وہ ماں کے شکم سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور جو باپ کی صلبوں میں تھے وہ باپ کی صلبوں سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہے وہ 3 مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام،
मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत के तौर पे आया, फिर हजरत इब्राहीम की पेशानी में आया और हजरत इब्राहीम की पेशानी से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, फिर यही नूर अमानत के तौर पे पेशानियों से मुंतकिल होता हुआ असलाब तैयबा से मुंतकिल होता हुआ अरहाम तैयबा से मुंतकिल होता हुआ मक्के की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से यही नूर दुनिया में तशरीफ लाया। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो बीबियां, एक बीबी हजरत हाजरा और एक बीबी हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से अंबियाए बनी इसराइल का सिलसिला शुरू होता है और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी से हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर रखा हुआ था, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और मेरे आका के बीच में कोई पैगंबर नहीं आया है। हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मदीने वाले मुस्तफ़ा ही पैगंबर हैं और मदीने वाले मुस्तफ़ा अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ही के सदक़े में तमाम अंबिया किराम को